I'm naming very sincerely these problems जो आजकल के बच्चों में बड़ी कॉमनली पाई जा रही है। अस्थमा की प्रॉब्लम, इसके साथ साथ मेंटल विकास की प्रॉब्लम। बड़े सारे लोग कहते हैं ना, कंप्लेंट करते हैं जी बच्चा जो है ना प्रॉपरली जो है समझ नहीं पाता बातों को। इसमें अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, आजकल बड़ा एक टर्म यूज की जाती है ADD, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। कि जी बच्चा जो है ना अटेंटिव नहीं रह पाता बड़ी देर तक, कुछ देर तक तो वो आपकी बात सुनेगा, उसके बाद वो आपकी बात सुनना बंद कर देगा। दैट चाइल्ड इज हैविंग अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। ऑटिज्म, वेरी कॉमन डिसऑर्डर, आजकल के बच्चों में एक बड़ा ज्यादा कॉमन डिसऑर्डर निकल के आ रहा है ऑटिज्म का। बिलीव मी, ऑटिज्म इज आल्सो रिलेटेड टू, अगर आपका नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा एंड दोस नर्वस सिस्टम इज अगेन कंट्रीब्यूटेड टू योर हेल्दी माइक्रोबियल फ्लोरा दैट इज प्रेजेंट इन योर। इसके साथ साथ बच्चों में अनीमिया की समस्या, मतलब खाया पिया लगने की ना समस्या। कहते हैं ना कि खाता तो बहुत है, मतलब खाता तो इतना है, सारा दिन लगा रहता है, सुबह चलना शुरू करता है, शाम तक चलता ही रहता है, लेकिन लगता फिर भी नहीं इसको कुछ। क्यों? क्योंकि वो जो न्यूट्रिशन है, वो जो डाइजेशन है, वो बच्चे का डाइजेशन पूरा नहीं हो रहा, उसको वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता। दिस इज द प्रॉब्लम। इसी को कहते हैं, एक छोटी सी वीडियो है, जल्दी से देखते हैं, फिर मैं कंटिन्यू। Your body is home to trillions of bacteria and other tiny organisms that can only be seen with a microscope. The vast universe of these organisms, or microbes, living in and on your body is known as the human microbiome. We now understand that the microbiome, and particularly the microbes in the gut, where most of them live, play a key role in nearly every aspect of our health and well-being, especially during childhood. Beginning at birth, microbes in the gut perform important duties, such as helping us to break down and absorb food, protecting the gut from harmful organisms, and helping to train a child's developing immune system to defend the body from infections and illnesses. The Child Cohort Study is a unique Canadian research project that has been studying the microbiome and the health and development of nearly 3,500 children across the country from pregnancy to school age and beyond. By following these children and their families over many years, Child has made exciting discoveries about how the types and balance of certain bacteria can shape health, and how changes to the microbiome may partly explain the shifting rates of childhood asthma, allergies, obesity, and other chronic diseases. Among other studies, Child research has found that the way a baby is born can have an effect on the gut microbiome. Babies born by cesarean section have a different microbiome compared to babies who are born vaginally and exposed to microbes from mom in the birth canal. Babies of mothers who received antibiotics during labor are also more likely to have changes in their gut microbiome. While antibiotics kill harmful microbes that cause infection, they can wipe out good ones too, which may lead to babies having a higher risk of childhood allergies and other conditions down the road. Child was one of the first studies to identify specific microbes that may influence asthma. By looking at the gut bacteria of babies in the study, Child researchers found that infants at a high risk of asthma had low levels of 4 gut bacteria in their first 3 months of life. The bacteria are called Faecalibacterium, Lactospira, Veillonella, and Raffia, tongue-twisting names that have been nicknamed FLVR, or flavor for short. ये जो 4 बैक्टीरिया की बात की गई ना यहाँ पे, कि 4 तरह के ऐसे बैक्टीरिया, जल्दी से उसको जिन लोगों को अगर नहीं भी कुछ समझ आया होगा उसमें, जल्दी से उसको हिंदी में समझाता हूँ कहना क्या चाह रहे थे उसमें। बेसिकली क्या है, जितनी भी तरह की डेवलप्ड कंट्रीज हैं हमारी, मैंने इसीलिए बात की ना कि अभी हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 8-10 सालों में हम लोग भी इन्हीं तरह की बातें करने लगेंगे जो ये बातें यहाँ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर वो बातें आते आते थोड़ा टाइम ले लेती है। इंडिया तक आते आते ना, इंडिया स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया तक आते आते वो चीजें जब वो रिसर्च हो चुकी होती है, फाइनल हो जाती है, फाइनल होने के बाद उसके रिजल्ट आने वाले होते हैं, तब वो इंडिया में इंट्रोड्यूस होती है। यूजुअली ये होता है। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा फर्स्ट मूवर एडवांटेज है जिसको हम डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हैं। ये स्टडी ये कहती है कि बच्चों में जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चाहे वो उनके नर्वस सिस्टम को डेवलपमेंट को लेकर है, चाहे वो उनकी बॉडी के इनिशियल एलर्जीज को लेकर है, एलर्जी हो जाती है बच्चों में, बड़ी सारी एलर्जीज हो जाती है, स्किन एलर्जीज वगैरह हो जाती हैं,
या बच्चों के डाइजेस्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट, लंग के डेवलपमेंट और उसके साथ साथ उनमें अस्थमा की जो प्रॉब्लम है उसका कहीं ना कहीं इन 4 बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ रीजन है, जिसका नाम दिया था उसने FLVR। फ्लेवर से याद रख लेना, फ्लेवर FLVR। ये 4 तरह के बैक्टीरिया अगर आपके बच्चे की बॉडी में प्रेजेंट है तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपके बच्चे को नहीं होगी। अगर नहीं प्रेजेंट है तो आपके बच्चे को ये सारी प्रॉब्लम होने की गुंजाइश हो जाती है। और वो प्रॉब्लम कहां होती है? वो प्रॉब्लम तब से शुरुआत नहीं होती जब बच्चा पैदा हुआ, वो तब से शुरुआत हो जाती है जब से मदर की वो वूम में वो बेबी डेवलप हो रहा था या जहां से वो प्रोड्यूस हुआ, जब वो पैदा हो रहा था वहां से वो प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती। नॉट फ्रॉम दैट, नॉट फ्रॉम वेयर, जब वो बच्चा डेवलप हुआ, जब वो बच्चा पैदा हो गया। लेकिन मान लिया एंटीबायोटिक्स किस तरह के लिए, उस पर डिपेंड करता है। वो किस तरह के एनवायरनमेंट में थी उस पर डिपेंड करता है। उसने किस तरह का फूड उस टाइम पे लिया उस पे भी डिपेंड। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यानी इन बैक्टीरिया का इतना बड़ा रोल है कि आपके बच्चा जो है उसका नर्वस सिस्टम प्रॉपर होगा कि नहीं, उसको किसी तरह की बीमारियां होंगी या नहीं, उसको अस्थमा की प्रॉब्लम, अनीमिया की प्रॉब्लम, अनीमिया मतलब खून का ना बन पाना प्रॉपरली, अनीमिया की प्रॉब्लम उस बच्चे में होगी कि नहीं, उसका खाया पिया लगेगा कि नहीं, डाइजेशन ठीक होगा कि नहीं, वो सारा का सारा इन बैक्टीरिया पे जो है डेवलप करता है, इन बैक्टीरिया पे डिपेंड करता है। एंड बिलीव मी, हमारे पास ये प्रूवन स्टडी है, हमारी अपनी करवाई हुई स्टडी है, जिसमें इन चारों बैक्टीरिया का रिजल्ट हमारे पास है कि हमारे प्रोडक्ट से ये चारों बैक्टीरिया क्या हुआ। ठीक है, तो अभी तो ये आपको कैनेडियन रिसर्च की स्टडी दिखाई है मैंने, बड़ी जल्दी आपको अपनी स्टडी दिखाऊंगा, जहां पर अपनी वीडियो बनाकर अपनी स्टडीज का आपको दिखाऊंगा कि हाँ ये देखिए वही 4 बैक्टीरिया हैं, तो 4 बैक्टीरिया। प्रॉब्लम ये है वी आर स्टिल एट अ वेरी नेसेंट स्टेज, वेरी अर्ली स्टेज। अगर आज मैंने अपनी सारी रिसर्च आपके सामने रख दी ना, अगर सारी रिसर्च सबके सामने रख दी तो होगा क्या, उसकी कॉपीज होते टाइम नहीं लगेगा। एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट ऑन दिस फ्रंट कि जो हमने रिसर्च की है उस रिसर्च का फायदा आप सबको हो सके, ऑर्गेनाइजेशन को हो सके, तब और लोगों को भी हो सके। उसके बाद उसकी जितनी कॉपीज बनती रहे, हमें फर्क नहीं। आज भी नेस्ले वाले बताते हैं मैगी में का जो मसाला है उसमें क्या डाला हुआ है, कभी बताया? बहुत सारे आए ना, लेकिन आज भी मैगी सबसे ज्यादा चलती है, उसका मसाला सबसे ज्यादा चलता है ना, कि अब हमारी बॉटल्स बनाने की क्षमता खत्म हो गई है। अब हम इतना प्रोड्यूस नहीं कर सकते जितनी डिमांड है। उस दिन बताएंगे, जरूर बताएंगे। और ये सरकार से वादा भाई इंद्रेश, मैं वादा करता हूं उस दिन बताएंगे और जरूर बताएंगे। और कहते हैं अपने साथ जो है 2-3 लोग मैंने रखे हैं जिनको भी फिलहाल पता है कि किस तरह की रिसर्च और किस तरह काम है, लेकिन तब जरूर करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे जिस दिन हमें लगेगा अब हम बता नहीं सकते। अभी हम बहुत प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अभी मुद्दा ये है कि अभी हम घर घर तक पहुंचे करें, लोगों को आराम हो। इस तरह जितना लोगों को आराम होगा उतनी ही हम जो है लोगों तक ज्यादा पहुंचेंगे। जितना लोगों तक ज्यादा पहुंचेंगे उतनी ही हमारी वैल्यू इंक्रीज होगी, उतना ही हम लोगों को ठीक रख पाएंगे और प्लस उतना ही हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ कंज्यूमर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये पीछे सारा जो है आपके सामने चल ही रहा होगा, जिसमें आई एम वेरी श्योर काफी लोगों का ध्यान इसी चीज पे था कि भाई बच्चों में